Hi students, I am Atul Rana and I am back with the 11th chemistry. 11th chemistry. We are studying chapter 2 and I think this is video lecture 11th on chapter 2. Video lecture 11th. Okay. So in the other lecture we have studied about Planck's quantum theory and some numericals, basic numericals on Planck's quantum theory. Now today I will be discussing the spectrum with you. I will be discussing the spectrum with you. Okay. Spectrum with you. Okay. I will discuss the spectrum. Spectrum. What is spectrum? Okay. So you see in the junior classes you have studied that when you pass light, when you pass white light means no color, जिसका कोई कलर नहीं. When you pass white light through a prism, ठीक है? So there is a photographic film. यहाँ पे photographic film होती है. This is known as photographic film. This is known as photographic film. Okay. Pass करोगे. So when white light is passed through prism, it separates into 7 different colors. विबग्योर ना लाइट किससे बनी है? वायलेट विबग्योर से बनी है. You all know रेनबो कलर. Okay. So violet having the maximum frequency is deviated the most. जिसकी frequency सबसे ज्यादा होगी सबसे ज्यादा deviation होगी. सबसे नीचे क्या मिलता है आपको? Violet. उसके बाद इंडिगो, then blue, then green, then yellow, then orange, and then red. Okay, this is vibriol. Okay, this is obtained when you pass white light through a prism and obtain the image on a photographic film. Okay, so violet having the highest frequency will deviate the most, and red having the lowest frequency will deviate the least. Okay, so this is called as spectrum. This is called as spectrum. Okay. The dispersal of white light or dispersal of radiation into different lines, dispersal of a radiation, this is also electromagnetic radiation into different lines or different colors is called as spectrum. Okay, अगर यहाँ पे हम कोई electromagnetic radiation लेंगे so the scattering of light is called as spectrum. Scattering of light into different colors is called as spectrum. तो यही spectrum है. तो scattering of light into different lines or colors is called as spectrum. ठीक है, बचपन में पढ़ा तुमने spectrum. This is spectrum. Vibriol is the spectrum. Spectrum of a single radiation into many lines is called as spectrum. Okay, so we will study the spectrum here. Okay, getting it? So here basically are two spectrum. Basically are two spectrum. हम जो पढ़ेंगे तो उसी को मैं डिफरेंशिएट करके तुम्हें बता दूंगा. One is emission spectrum. Emission spectra. Spectrum is full form of spectrum. So you can write emission spectrum also. Okay. And one is absorption spectrum. One is emission spectrum and one is absorption spectrum. One is emission spectrum and other is absorption spectrum. Emission का मतलब है लाइट इमिट करना. जब कोई सब्सटेंस लाइट इमिट करता है और उसके लाइट इमिट करने से जो स्पेक्ट्रम बनता है दैट इज नोन एज इमिशन स्पेक्ट्रम. एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, जब किसी सब्सटेंस में से लाइट गुजारी जाती है और कुछ लाइट के कुछ हिस्से को एब्जॉर्ब कर देता है और कुछ को निकलने देता है. एब्जॉर्प्शन में क्या होगा? लाइट गुजारी जाएगी, एक सब्सटेंस में से लाइट पास की जाएगी तो लाइट के कुछ हिस्से को इट विल एब्जॉर्ब और बाकी को निकाल देगा. तो बाकी जो पीछे स्पेक्ट्रम बनाएगा दैट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. और किसी सब्सटेंस को हम हीट करेंगे तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिलीज करेगा, ये लाइट रिलीज करेगा. उस लाइट को हम प्रिज्म में से गुजारेंगे और फिर उसका स्पेक्ट्रम देखेंगे. दैट इज कॉल्ड एज इमिशन स्पेक्ट्रम. आई एम अगेन टेलिंग यू, जब कोई सब्सटेंस लाइट इमिट करेगा, जैसे किसी सब्सटेंस को हीट करो, जैसे तुम आयरन को हीट करते हो तो पहले रेड होता है, कोई रेडिएशन निकलती है तब रेड होता है ना, फिर येलो होता है, किसी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन निकलेगी तब येलो होता है. ठीक है, तो जब किसी सब्सटेंस को हम हीट करेंगे, ठीक है, और फिर वो लाइट इमिट करेगा, उस लाइट को हम या उस रेडिएशन को हम प्रिज्म में से गुजारेंगे और फिर उसका स्पेक्ट्रम देखेंगे दैट इज इमिशन स्पेक्ट्रम. और दूसरे में एब्जॉर्प्शन में हम हीट नहीं करेंगे, लाइट लेंगे, कोई सब्सटेंस बीच में रख देंगे, उसमें से गुजार देंगे. ठीक है, अब लाइट के कुछ हिस्से को तो वो सब्सटेंस एब्जॉर्ब कर लेगा, बाकी को जाने देगा. जो बाकी का हिस्सा चला गया उसको प्रिज्म में से गुजार के स्पेक्ट्रम देख लेंगे दैट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. वेरी सिंपल. ओके, इमिशन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. ठीक है, इसमें क्या किया हमने? जैसे किसी सब्सटेंस को हमने हीट किया, किसी सब्सटेंस को हमने हीट किया, कोई भी सब्सटेंस ले लो, उसको हमने क्या किया? हीट किया. ठीक है, अब हीट करने के बाद वो कोई ना कोई रेडिएशन निकालेगा. हीट करने के बाद क्या होगा? देखो अंदर क्या होगा, उसका इलेक्ट्रॉन जो होगा, उसके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और ऊपर चले जाएंगे.
इससे क्या होगा, एनर्जी मिलेगी। वो एनर्जी कौन अब्सॉर्ब कर लेगा, इलेक्ट्रॉन, और ऊपर चले जाएंगे। जब वो इलेक्ट्रॉन नीचे जंप मारेगा तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी लेके ऊपर गया उसको बाहर फेंक देगा। उसको क्या करेगा, उसको बाहर फेंक देगा उस एनर्जी को, ठीक है। तो उसी जो एनर्जी उसने बाहर फेंकी है रेडिएशन, उसी को हम ऑब्जर्व करेंगे, उसी को हम प्रिज्म में ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। हमने इसको हीट किया, इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन के ऊपर चला गया, ऊपर जाते नीचे आया तो उसने एनर्जी इमिट कर दी। जो ऊपर लेके गया था नीचे आते फोटो इलेक्ट्रिक इवेंट आपको बता दिया, नीचे आएगा तो एनर्जी इमिट कर देगा। जो एनर्जी उसने इमिट कर दी, ठीक है, जो एनर्जी इमिट की ना कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट किया किसी फ्रीक्वेंसी की, कोई भी कलर देगा तो किसी फ्रीक्वेंसी की वजह से आएगा ना। तो उसने कोई मान लो लाइट इमिट कर दी, ठीक है। तो अब ये लाइट सिर्फ एक कलर की होगी। जैसे मान लो हमने यहाँ पे सोडियम लिया है, हम सोडियम को हीट करते हैं तो कौन सी लाइट निकलेगी, सिर्फ येलो लाइट, ओके। सोडियम को हीट करें तो कौन सी लाइट आएगी, सिर्फ येलो लाइट आएगी। यहां पे मान लो पोटाशियम को हीट कर रहे हैं तो पोटाशियम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जब वो नीचे से ऊपर जाते हैं और फिर ऊपर से फिर से नीचे आते हैं तो जो वो हीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करते हैं उसकी रेडिएशन ब्लू कलर से होती है। तो पोटाशियम के इलेक्ट्रॉन ब्लू कलर इमिट करेंगे, तो उसको हम क्या करेंगे, यहां से इमिट कर देंगे, प्रिज्म लगा देंगे। तो जब इस लाइट को हम देखेंगे तो क्या होगा, बाकी सिर्फ येलो कलर, सिर्फ येलो कलर की लाइन आएगी, सिर्फ येलो कलर की लाइन आएगी। बाकी जो है बी आई बी जी ओ आर, वहां पे क्या होगा, डार्क स्पेस होगी, वहां पे कलर नहीं आएगा क्योंकि वो कलर इसने दिए नहीं है। इसने सिर्फ कौन सा कलर दिया है, विजिबल लाइट का सिर्फ कौन सा कलर, सिर्फ येलो दिया है। तो येलो लाइन आ जाएगी हमारे पास और बाकी जगह क्या आ जाएगा, डार्क स्पेस, ठीक है। डार्क स्पेस, ग्रीन की जगह डार्क स्पेस, डार्क स्पेस, डार्क स्पेस, डार्क स्पेस, ठीक है। येलो की लाइन आएगी क्योंकि सोडियम का इलेक्ट्रॉन जब ऊपर से नीचे आता तो येलो लाइट इमिट करता है। तो प्रिज्म में गुजरते हो येलो लाइट दिखेगी अपना। कौन सी लाइट दिखेगी, सिर्फ और सिर्फ येलो। कौन सी दिखेगी, येलो वाली लाइन दिखेगी और बाकी पूरा स्पेक्ट्रम क्या डार्क आएगा। बाकी डार्क बैंड्स होंगे, इसके रेड पे डार्क बैंड, ऑरेंज पे डार्क बैंड, क्योंकि वो तो उसने इमिट नहीं किया, इसने सिर्फ एक ही कलर इमिट किया है, येलो। उसी तरीके से पोटाशियम क्या करेगा, ब्लू कलर इमिट करेगा। तो क्या होगा, बिग। तो यहां पे ब्लू की वाली एक अच्छी सी लाइन आ जाएगी, बाकी सारा स्पेस क्या होगा, ब्लैक होगा। बाकी सारा क्या होगा, डार्क लाइन आ जाएगी। बाकी क्या आ जाएगी, डार्क लाइन आ जाएगी। सिर्फ एक लाइन आएगी ब्लू की, बाकी सारा डार्क स्पेस आ जाएगी, ओके। सो दिस स्पेक्ट्रम जिसमें एक कलर या मैक्सिमम दो, एक कलर्ड वेवलेंथ है, कलर की रेडिएशन है और बाकी सारा डार्क स्पेसिस होता है, इट इज नोन एज इमिशन स्पेक्ट्रम। इसमें क्या आएगा, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप करेगा नीचे आएगा तो एक ही कलर की रेडिएशन इमिट करेगा। तो वही हम स्पेक्ट्रम देखेंगे। बाकी जो है येलो को छोड़ के कितने कलर में ब्लैंक देखेंगे। सो दिस इज इमिशन स्पेक्ट्रम। अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इसका उल्टा है। एब्जॉर्प्शन में हम क्या करेंगे, जैसे हमने Na ले लिया, सोडियम ले लिया, सोडियम में से लाइट गुजारेंगे, सोडियम में से लाइट गुजारेंगे, ठीक है। लाइट कितने कलर की होगी, व्हाइट लाइट होगी, सोडियम में से लाइट गुजारेंगे, ठीक है। आगे रख देंगे प्रिज्म। अब देखो व्हाइट कलर का कौन सा पोर्शन सोडियम एब्जॉर्ब करेगा, बीम की हो रहा है ना व्हाइट लाइट, इसका कौन सा एब्जॉर्ब करेगा, येलो एब्जॉर्ब करेगा। येलो मीट करना तो एब्जॉर्ब भी क्या करेगा, येलो करेगा। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉन येलो ऑब्जर्व करके ऊपर निकल जाएगा। सोडियम का इलेक्ट्रॉन व्हाइट कलर से येलो ऑब्जर्व करेगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इसके वापस आने से पहले ये लाइट पास हो जाएगी प्रिज्म में से लाइट पास हो जाएगी। तो यहां पे देखो ठीक है। अब येलो ऑब्जर्व हो चुका है, बाकी वॉयलेट इसके पास था, बी है, जी है, जी है, बाई ओ आर, ठीक है। ऑरेंज को छोड़ के, सॉरी येलो को छोड़ के, येलो वाला पोर्शन सोडियम के इलेक्ट्रॉन ने ले लिया, ऊपर चला गया। बाकी ये इससे पहले वापस आता है, इससे पहले लाइट हमने गुजार दी थी, ठीक है। तो बाकी ये देखो येलो को छोड़ के बाकी सारे के सारे कलर आ जाएंगे, बी आई बी जी बाई ओ सारे के सारे आ जाएंगे, ठीक है। येलो नहीं आएगा क्योंकि येलो यहां पे एब्जॉर्ब हो चुका है। तो इसमें सारा कलर आएगा, एक ब्लैक लाइन आएगी, कौन सी, येलो वाली। और इसमें क्या होगा, सिर्फ एक लाइन की आएगी येलो वाली, बाकी सारा ब्लैक आएगा। तो दिस इज दिस एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब देखो ये दोनों स्पेक्ट्रम कैसे हैं, कॉन्टिन्यूस है कि डिसकॉन्टिन्यूस है। डिसकॉन्टिन्यूस देखो, इसमें कलर 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 और बीच में लाइन, ब्लैक लाइन आ गई, देन कलर कलर, बीच में टूट गया, डिसकॉन्टिन्यूस हो गया। और इसमें देखो इसमें देखो
ब्लैक ब्लैक ब्लैक, बीच में लाइन, ब्लैक ब्लैक ब्लैक, तो डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। इसमें लाइन आती है, इसमें येलो लाइन आ रही है, इसमें ब्लैक कलर की लाइन आ रही है। इसमें येलो की जगह येलो लाइन आ रही है, वहां पे येलो की जगह क्या आ रहा है, लाइन आ रही है। गेटिंग द पॉइंट? यहां पे देखो सारी ब्लैक लाइंस है। सो दिस स्पेक्ट्रा आर आल्सो नोन एज, ये जो दोनों स्पेक्ट्रम है, these are also known as this discontinuous spectra. They are also known as discontinuous spectrum. Discontinuous spectrum. Discontinuous क्योंकि देखो इसमें कलर यहां पे देखो ब्लैक था, ये कलर नहीं था, ये ब्लैक ब्लैक येलो हो गया, ब्लैक 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 ब्लैक, तो देखो ब्लैक हर जगह देना, बीच में येलो हो गया, तो डिसकंटिन्यूस हो गया। यहां भी वॉयलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन और येलो की जगह लाइन आ गई, तो कलर भी कंटिन्यू था नहीं रहा, ब्लैक स्पेसेस भी कंटिन्यू था। यहां पे सारा ब्लैक स्पेस था, बीच में येलो हो गया, यहां पे सारा कलर था, बीच में येलो गायब हो गया। तो दीज आर डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा या इनको बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रा। लाइन सारी ना, बड़ी सारी लाइन 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 लाइन। इसमें देखो इस वाले में तो सारी लाइन्स ही हैं, ब्लैक लाइन ब्लैक लाइन ब्लैक लाइन ब्लैक लाइन ब्लैक लाइन, ठीक है, कलर है ही नहीं कोई भी, तो उसको बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रा। लाइन स्पेक्ट्रा, ओके। सो इमिशन स्पेक्ट्रा एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बोथ आर डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, क्योंकि ना तो कलर कंटिन्यू है ना तो ब्लैक स्पेसेस कंटिन्यू है, तो दे बोथ आर डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। एंड स्पेशली दिस एमिशन स्पेक्ट्रा इज लाइन स्पेक्ट्रा। एमिशन का जो डिसकंटिन्यूअस पार्ट है, एमिशन डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, एमिशन का जो डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा है उसमें देखो सारी लाइनें ही है, ब्लैक लाइन के बीच में कलर है, तो उसको लाइन स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं, ठीक है। तो तुम पूछोगे दिस ऑल आर डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा कौन देता है, तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा देती है व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट गुजारोगे तो सारे के सारे कलर क्या जाएंगे, आ जाएंगे, विब ग्योर, सारे के सारे कलर आ जाएंगे। व्हाइट लाइट जब देंगे सीधी प्रिज्म के थ्रू, ना किसी सब्सटेंस से प्रोड्यूस करेंगे ना किसी सब्सटेंस से गुजारेंगे, जब सीधी प्रिज्म के थ्रू व्हाइट लाइट देंगे तो स्पेक्ट्रा बिल्कुल कंटीन्यूअस होगा, सातों कलर आपस में कंटीन्यूअस होंगे। दिस इज कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रा, दिस इज कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रा, ये कंटीन्यूअस आ गया। एंड इमिशन स्पेक्ट्रा इट इज डिसकंटीन्यूअस बाय, क्योंकि उसमें 6 ब्लैक लाइंस आएगी, एक येलो लाइन कलर्ड आएगी। और दिस इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इज आल्सो डिसकंटीन्यूअस, क्योंकि इसमें 6 कलर आएंगे, येलो की जगह ब्लैक लाइन आएगी, इसमें येलो की जगह ब्लैक लाइन आएगी क्योंकि येलो को ऑब्जर्व कर लेंगे, और यहाँ पे सिर्फ येलो मीट होगी तो येलो की जगह येलो लाइन आएगी, बाकी सारे क्या आएंगे, ब्लैक आएंगे। तो दिस बोथ आर डिसकंटीन्यूअस, इसमें लाइंस ज्यादा होती हैं, तो दिस इज आल्सो कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रा। कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रा इज ओनली स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। गॉट इट?